بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ میں نے گزشتہ ویلاگ میں آپ کو ایک بات کہی تھی کہ لوگ بھی منصوبہ بناتے ہیں اور اللہ رب العزت کا بھی منصوبہ ہوتا ہے، اور اللہ کے منصوبے کے آگے کسی کی کچھ نہیں چلتی۔ وہی مالک کائنات ہے، ساری طاقت اس کے پاس ہے۔ آپ نہ کسی کو ذلیل کر سکتے ہیں، نہ کسی کو شکست دے سکتے ہیں، نہ آپ کسی کو غریب کر سکتے ہیں، نہ کسی سے اس کا مقام چھین سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نہ چاہے تو کچھ بھی کوئی کسی کا نہیں کر سکتا۔ اب جو نتائج آ رہے ہیں انتخابات کے، تمام تر پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی تھیں، پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں اکٹھی تھیں، 1 درجن سے زیادہ جماعتیں تھیں، پاکستان کا 90% میڈیا تھا، طاقتور حلقے بھی ان کے ساتھ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی بیوروکریسی، پنجاب کی پولیس، وفاقی اور صوبائی حکومتیں، بیوروکریٹ، ان کے سارے وسائل، تمام بجٹ، ہر چیز جو ہے وہ میسر تھی لوٹے امیدواروں کو، جن کو ہر حال میں جتوانا تھا۔ یہاں پہ جو امیدوار الیکشن لڑ رہے تھے ان میں سے 18 تو ڈائریکٹ وہ لوٹے تھے جو اپنی پارٹی تبدیل کر کے دھوکہ دے کر لالچ میں یا کسی اور چیز میں وہ پارٹی بدل گئے تھے۔ اور لوٹوں کو الیکشن جیتنا اتنا آسان نہیں ہوتا، لوگ اس بات کو معیوب سمجھتے ہیں۔ اب تک کے جو نتائج آ رہے ہیں وہ حیران کن ہیں، یعنی ہر قسم کی دھاندلی، ہر قسم کا زور لگا کے صبح سے پولیس نے پریزن وینس کھڑی کی ہوئی ہیں، قیدیوں والی ویگنیں، ان میں بھر بھر کے بندوں کو لے جا رہے ہیں۔ کبھی باہر بیٹھے ہوئے ایجنٹس کو گرفتار کر رہے ہیں، کبھی اندر سے ایجنٹس کو باہر نکال رہے ہیں، کہیں پہ ٹھپے لگ رہے ہیں، کہیں پہ بکسے لائے جا رہے ہیں، کہیں پہ کچھ کیا جا رہا ہے، کہیں پہ کچھ، ہر طرح کی دھاندلی کی، گھوسٹ پولنگ سٹیشنز تک کا تذکرہ جو ہے وہ آج ہوتا رہا ہے۔ بدترین دھاندلی کے باوجود، ہر چوک میں پولیس گردی کے باوجود، خوف و ہراس پھیلانے کے باوجود، الیکشن کے نتائج کچھ اور آ رہے ہیں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ لوگوں کی رائے کے سامنے بند باندھنا بہت مشکل ہوتا ہے یا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ 20 حلقوں کے اندر یہ الیکشن تھا۔ اب تک کی صورتحال بہت عجیب ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ شیخو پورہ صرف اعلان ہونا باقی ہے، پاکستان تحریک انصاف اب تک جیت چکی ہے۔ فیصل آباد بھی جیت لیا ہے، راول پنڈی بھی جیت لیا ہے۔ لاہور میں 4 میں سے 3 نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف آگے چل رہی ہے، اور تقریباً انہوں نے 2 تو جیت لی ہیں، تیسری کی جیت اناؤنس ہو جائے گی۔ اور جو چوتھی نشست ہے وہاں پہ اتنا ظلم کیا گیا ہے کہ اگر وہاں پہ کھلا چھوڑا جاتا لوگوں کو، یعنی وہ شرافت ابھی تک اندر ہے جو 4 سے 5 ہزار ووٹ کاسٹ کر سکتا تھا، اور بہت سارے لوگ اندر ہیں، کو بھاگے ہوئے ہیں۔ تو جتنا ظلم پی پی 168 میں ہوا ہے وہاں تو دوبارہ الیکشن ہونا چاہیے۔ اور پی پی 168 کے علاوہ لاہور کی باقی تینوں سیٹیں نون لیگ ہار گئی ہے، شیر کو ووٹ نہیں پڑا، یعنی نون لیگ نے اپنا بیڑا غرق کروا لیا ایک ضد کے چکر میں۔ ملتان کی سیٹ بہت آگے چل رہے ہیں شاہ محمد قریشی کے بیٹے زین قریشی، جبکہ وہاں مقابلہ بہت ٹف تصور کیا جا رہا تھا، لیکن 3-4 ہزار کا فرق اب تک جب میں بات کروں پڑ چکا ہے۔ لودرا میں شکست ہو گئی ہے جہانگیر ترین کو، یعنی جہانگیر ترین صاحب کا اپنا وہ علاقہ ہے، وہاں وہ بڑے مقبول ہیں، بہت طاقتور ہیں، لیکن وہاں ان کو ووٹ نہیں پڑ رہا۔ جنگ کی دونوں سیٹوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف آگے چل رہی ہے۔ مظفر گڑھ کی سیٹوں دونوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف جیت رہی ہے۔ لیا میں فرق بہت بڑا پڑ گیا، اور سب سے زیادہ جو فرق ڈالا ہے وہ ڈی جی خان میں سیف الدین کھوسا نے ڈالا ہے۔ سردار ذوالفقار علی خان کھوسا کے یہ صاحبزادے ہیں، اور یہ ذاتی طور پہ میں ان کو جانتا ہوں، یہ جب بھی الیکشن لڑے، کسی بھی جماعت سے لڑے، آزاد لڑے، میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں سیف الدین کھوسا کی، وہ یہ بہت خدا ترس آدمی ہیں۔ اور میں ایک دن ڈی جی خان گیا تھا، وہاں پہ کچھ بچیوں کو اغوا کر کے، پنجاب کے سینٹرل پنجاب سے بچیوں کو اغوا کر کے گینگز جو ہیں وہ ڈیرہ غازی خان سے پرے جو کچے کا علاقہ ہے ادھر لے جاتے تھے۔ تو میں جب ان کے پاس گیا، میں نے ان کو پوری بات بتائی تو انہوں نے بڑی مدد کی تھی اور بڑا زور لگایا تھا اور ذاتی دلچسپی لی تھی۔ تو میں نے اندازہ کیا تھا کہ جتنی یہ آدمی ایفرٹ کر رہا ہے، اور جس طرح کی انہوں نے میرے ساتھ باتیں کی تھی کہ ہمارے اپنے گھر پہ بھی بچی ہیں، اور یہ وہ اس طرح انہوں نے دل کے اوپر انہوں نے فیل کیا تھا اور ان بچیوں کو بازیاب کروایا تھا اور ان کے گھروں میں واپس بھجوایا تھا۔ یہ سیف الدین کھوسا ہے، بڑا خدا ترس آدمی ہے۔ میں کبھی تفصیل میں بتاؤں گا وہاں پہ کیا ہوا تھا اور میری ان کے ساتھ کیا بات چیت ہوئی تھی۔ تو سب سے بڑے مارجن سے تو یہ آگے چل رہے ہیں۔ تو وہاں اب آپ عثمان بزدار کو، یا خاص طور پہ جو کمپین کی ہے زرتاج گل وزیر نے، وہ آگے لے کر چلے گئے ان کو۔ تو اس طرح پاکستان تحریک انصاف اب تک کی انفارمیشن کے مطابق 15 سے 16 نشستوں پر آگے چل رہی ہے۔ مسلم لیگ نون جن 4 نشستوں پر آگے چل رہی تھی ان میں 202 یہ وہ ساہیوال والی ہے، نعمان لگڑیال والی سیٹ ہے، 237
168 ये लाहौर वाली जो है, और 273 इन पे नून लीग आगे चल रही थी। 202 भी उनके हाथ से निकल गई है। अब लेटेस्ट जो इतला आई उसके मुताबिक 202 में नुमान लंगड़ियाल को क्रॉस कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट ने, और वो तकरीबन 2,200 की लीड से 2,200 वोटों की लीड से आगे चल रहे हैं इस वक्त। तो यहां पे भी अब पीएमएलएन को एक और सेटबैक है। तो 16 नशिस्तों पे पीटीआई आगे आ गई, 3 के ऊपर पीएमएलएन आगे है, 1 के ऊपर आजाद उम्मीदवार आगे है। हैरत अंगेज तौर पे जो वोट है तहरीक लब्बैक का वो कम हुआ है। तहरीक लब्बैक बहुत ठीक ठाक वोट लेती रही है माजी में, लेकिन हैरत अंगेज तौर पे इनका वोट कम हुआ है। खादम हुसैन रिजवी साहब मरहूम जब हयात थे तो उस वक्त इस जमात का बड़ा अच्छा वोट बैंक था, बड़ी तगड़ी जमात थी और बहुत ज़्यादा इन्होंने वोट लिए थे। तब इनका मौक़िफ़ भी बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हुआ करता था। इन्होंने बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल गलतियां की हैं और सियासी जमातों की तरह रिएक्ट किया है कि लोगों को इनके अंदर और दूसरी सियासी जमातों में फ़र्क करना मुश्किल हो गया। तो फिर लोगों के लिए ये उस ऑप्शन की तरह नहीं रहे जैसे खादम हुसैन रिजवी साहब ने बनाया था। बहरहाल जो 228 है वहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार आ गए, और मज़े की बात यह है कि जहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार एक दो जगह पे आगे निकले कुछ देर के लिए और एक जगह पे अभी भी आगे हैं, वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरे नंबर की जमात थी और पीएमएलएन जो है वो तीसरे नंबर की जमात थी और बहुत पीछे थी। लोधरा में अब आज़ाद उम्मीदवार को पीछे छोड़ दिया है और वहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे निकल गई है। खुशाब में आसिफ भा कुछ देर तक आगे रहे हैं। देखना यह है कि वो अपनी इस बढ़तरी को कामयाब रख सकते हैं, इस बढ़तरी को जो है वो कायम रख सकते हैं या ये उनके हाथ से निकल जाएगी। पीएमएलएन के साथ ये हुआ क्या, जरा गौर करें आप थोड़ा सा। एक तो पीएमएलएन ने जितने उम्मीदवार से लौटे उन सारों को टिकट दिए। अगर यहां पे पीएमएलएन के अपने उम्मीदवार होते तो शायद नून लीग का वोटर ज्यादा वोट करता और नून लीग की पोजीशन बेहतर होती और वो पीटीआई के बराबर आ जाती। इतना फर्क ना होता, पीटीआई के बराबर जरूर आ जाती। इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ना था अगर नून लीग के अपने उम्मीदवार होते। अब लोटों को उन्होंने टिकट दिया था क्योंकि उन्होंने पहले वादा किया हुआ था कि अगर आप लोग डी सीट हो गए तो आप शेर के इंतखाबी निशान पे इलेक्शन लड़ेंगे। अब इन लोटों को जितवाना बहुत मुश्किल है क्योंकि लोग उनको पसंद नहीं करते और इस चीज़ को मायूब समझते हैं। वो आदमी जो पिछले इलेक्शन में नून लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़के जीता है, इस मरतबा वो नून लीग के टिकट पे आ गया, तो वो जो नून लीग का उम्मीदवार था वो कैसे उसको वोट डलने देगा। और जो नून लीग का वोटर सपोर्टर है जिसने उसकी मुखालफत का सामना किया 3-3.5 साल तक, वो कैसे उसको वोट डालेगा। तो अपने दिल को मनाना भी बहुत मुश्किल था। फिर मरियम नवाज साहिबा की कंपेन इंतहाई मायूस कुन थी। वो सिर्फ अपने आप को प्रमोट कर रही थी, यानी जिस शहर में जलसा करती थी 4 शहर के लोगों को इकट्ठा करती थी, बहुत सारे लोगों को साथ लेकर जाते थे, उनको सिर्फ जलसे करने थे, उनको इलेक्शन नहीं जीतना था। वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग नहीं होते थे, वो इधर उधर से लोगों को पकड़ के इकट्ठा करते थे और वहां से वो, यानी मुझे बताया गया कि चीचा वतनी में जो जलसा किया मरियम नवाज ने, उस जलसे को बड़ा और तगड़ा करने के लिए फैसलाबाद और झंग तक से लोगों को बुलवाया गया था और उन लोगों ने आकर वो जलसा बड़ा किया था, बसों और वैगनों में भर के लोगों को लाए थे। तो फैसलाबाद और झंग के लोगों ने तो यहां पे आके चीचावटनी में वोट नहीं डालना, यहां पे तो यहां के लोगों ने वोट डालना है। तो मरियम नवाज साहिबा की एक इंतहाई मायूस कुन कंपेन थी जिसको देखते हुए बाद में वज़रा ने इस्तीफा दिया और वो इलेक्शन के मैदान में कूद गए, पूरी की पूरी मशीनरी इस्तेमाल की, सब कुछ किया। लेकिन एक बात जो है वो लोगों ने पल्ले बांध ली कि इमरान खान साहब का बयानिया लोगों के साथ खड़ा हो गया। इमरान खान साहब ने कहा कि रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, अंदरूनी और बैरूनी जो अनासर हैं उन्होंने मिलकर मेरी हुकूमत को गिराया है और ये जो हुकूमत बनाई है ये NRO 2 लेने के लिए आए हैं। लोगों ने इसको बाय कर लिया और लोग क्यों ना करें। जब से ये हुकूमत आई इसने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 100 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया, 150 रुपया डीजल बढ़ा दिया, घी की कीमतें 200 रुपये से ज़्यादा बढ़ा दी, इन्होंने गैस की कीमतें 50% बढ़ा दी, बिजली की कीमतें 80% बढ़ा दी। पाकिस्तान में हर चीज़ ये जो इंपोर्टेड हुकूमत आई इसने महंगी कर दी। एक्सपोर्ट्स ख़त्म, मईशत ख़त्म, पाकिस्तान के अंदर पैसे का फ्लो ख़त्म हो गया। पैसे का फ्लो ख़त्म होने की वजह से लोग बहुत परेशानी में चले गए हैं और एतमाद मार्केट का वापस नहीं आ रहा। उसकी वजह से लोग बहुत मुतनफ़र थे और लोग हुकूमत से नफरत कर रहे थे और ख़ास तौर पे उन लोटों से जिनकी वजह से हुकूमत गिरी है। और अब एक बुरी कंपेन की मरियम नवाज साहिबा ने और एक शानदार कंपेन की इमरान खान साहब ने। उन्होंने अपना नैरेटिव बहुत खुलकर सामने रखा
कि एक्चुअली ये आज़ादी और खुद मुख्तारी की जंग है, लोगों ने उसको बाय कर लिया, उसको ओन कर लिया और उनको वोट डाल दिए। देखिए, सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर जीत के पंजाब में हुकूमत बनाएगी, अभी भी देखें इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है, किसी वक्त भी सिस्टम बैठ जाएगा, किसी वक्त भी कहीं से हुक्म आ जाएगा, किसी की जिद, किसी की अना अगर किसी वक्त भी आकर सामने खड़ी हो गई और एक झुरलू फेर दिया गया, तो मुमकिन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कुछ सीटें छीन ली जाएं। हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 15 से 10 या 11 पे करने की कोशिश की जाए, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से कुछ लोगों को इस्तीफे दिलवाने पड़ेंगे और परवेज़ इलाही कोशिश करेंगे कि नून लीग के कुछ लोग इस्तीफे दें। तो ये बहुत ज़्यादा गेम बाकी है और जो ताकतवर हल्के हैं वो अगर अपने आप को इस सारे मामले से बाहर रखते हैं तो परवेज़ इलाही की जीत को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर ताकतवर हल्के इन्वॉल्व रहते हैं, जिस खदशे का इजहार किया जा रहा है, बार बार इमरान खान साहब मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का जिक्र करते हैं, अगर ये मुतहर्रिक ही रहते हैं तो फिर हमजा शहबाज की हुकूमत को बचाने की कोशिश की जाएगी और उसके नतीजे में पंजाब के अंदर दोबारा अनारकी पैदा होगी, पाकिस्तान के अंदर अनारकी पैदा होगी। मैंने इतनी पुलिस वैन्स कभी लाहौर के अंदर नहीं देखी जितनी मैंने आज देखी है। हर चौक में जहां जहां पे इलेक्शन हो रहे हैं, हर चौक के अंदर पुलिस खड़ी है, डंडे लेकर, जत्थे बनाकर, हर बंदे को रोककर चेक कर रहे हैं, हर बंदे को परेशान कर रहे हैं, लोगों को हिरासा कर रहे हैं। जगह जगह पे प्रिजन वैन्स खड़ी की हुई है कि जहां पे कोई नारेबाजी हो, पकड़ा, बंदा अंदर डाला, लेकर चले गए। जो लोग वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पर्चियां बनाने वाले बाहर बैठे हुए थे, वोटर्स को गाइड करने वाले जो कैंप्स में बैठे हुए थे, उन तक को गिरफ्तार कर लिया गया, काउंसलर्स को गिरफ्तार किया गया, पॉलिटिकल लोगों को भगाया गया। खास तौर पे PP 168 में जहां जो है वो असद खोखर साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब नून लीग क्या बतौर सियासी जमात इतनी बुरी है? मेरा नहीं ख्याल इतनी बुरी है। ये लोटों को जितवाना वैसे ही नामुमकिन था, इनको ये जितवा नहीं पाते। अब देखना यह है कि मुकम्मल नतीजा आने तक क्या होता है। वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात की शाबाश मिलनी चाहिए कि उनके लोग विजिलेंट रहे, सारा दिन धांधली के खिलाफ लड़ते रहे, सारा दिन धांधली के खिलाफ मुकाबला करते रहे और बाद में जो उनका पोलिंग स्टाफ है, जो उन्होंने एजेंट्स बनाए थे पोलिंग के, जिनको ट्रेंड किया था, वो वहां पे अपनी ड्यूटी देते रहे और उन्होंने फॉर्म 45 या सरकारी नतीजा लिए बगैर वहां से निकलने से इनकार कर दिया। अब जो गैर सरकारी नतीजे आ रहे हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 15 से 16 नशिस्तों पर आगे चल रही है। यानी जियो न्यूज इस वक्त, जियो न्यूज की मैं आपको बात बता रहा हूं और किसी चैनल की नहीं कह रहा। यानी अगर ARY बोले या कोई और चैनल बोले तो लोग कहते हैं कि ये ऐसा है या वैसा है। जियो न्यूज इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 16 नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आगे दिखा रही है, 3 नशिस्तों पर PMLN को आगे दिखा रही है और 1 नशिस्त पर दूसरे उम्मीदवार को आगे दिखा रही है, जो ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है ना PMLN का है, वो एक आज़ाद उम्मीदवार है। तो ये जियो की रिपोर्टिंग है। इस रिपोर्टिंग के बाद, इस सारी सूरत हाल के बाद, अब आखिरी रिजल्ट आने तक लोगों को विजिलेंट रहना पड़ेगा, तवज्जो देनी पड़ेगी, ख्याल रखना पड़ेगा। सेलिब्रेट जरूर करें लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि एक स्याह रात थी और लेकिन छोटी थी। इन्होंने बड़ा जुल्म किया है। यानी मेरे साथ जो हालात किए हैं, मैं किसी दिन मैंने आपसे कहा था मैं आपको बताऊंगा। इन्होंने इस हद तक जबर किया है, इस हद तक जुल्म किया है, लेकिन इसके बावजूद हमने चीज़ें अल्लाह ताला पे छोड़ी हैं और कानून पे छोड़ी हैं, अदालतों पे छोड़ी हैं और अदालतों के अंदर इंशाल्लाह ना सिर्फ इंसाफ लेंगे बल्कि साबित करेंगे कि ये फाशिस्ट रजीम था, इन्होंने जुल्म किया, इन्होंने ज्यादती की और इनके हैंडलर्स ने हमेशा इनका साथ दिया। तो नाज़रीन, ये जो अब तक की खबरें हैं यहां पे मैं रोक लेता हूं, अब तक के लिए इतना ही। लेकिन जितने लोग बैठे हुए हैं रिजल्ट्स के ऊपर, वो अपनी आंखें खुली रखें जब तक कि आखिरी नतीजा नहीं आ जाता। 15 से 16 सीटें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतती है तो फिर वजीर आला पंजाब परवेज़ इलाही होंगे, हमजा शहबाज नहीं होंगे। अब तक इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।